Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark indices plunge around 2%. Sensex closes below 36,000 mark. Rupee logs weakness after gaining ₹1.85 in the last 3 days. And Brent crude prices fall to trade around $53 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 2% लुढ़के सेंसेक्स 36,000 के स्तर से नीचे आया। रुपए में पिछले 3 दिनों में ₹1.85 की कुल मजबूती दर्ज होने के बाद आज गिरावट आई और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य गिरकर लगभग $53 प्रति बैरल के करीब दर्ज हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में आज भारी बिकवाली का रुख था। वैश्विक बाजारों से संकेत कमजोर रहने के बीच निवेशकों ने रियल्टी, बैंकिंग, आईटी और ऑटो क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली की। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स भारी गिरावट दर्ज करते हुए 36,000 के स्तर से नीचे आ गया। कुल 1.9% की मंदी से 690 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ सेंसेक्स 35,742 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की मंदी से 198 अंक कम होकर 10,754 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार सप्ताहांत से पहले शेयर बाजारों में आई बिकवाली का प्रमुख कारण था आने वाले वर्ष में वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने की चिंताएं। विश्लेषकों ने कहा कि आईटी और टेक क्षेत्रों पर रुपए से जुड़ी चिंताओं का असर भी दिखाई दिया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.79% की गिरावट आई और स्मॉल कैप सूचकांक 1% के नुकसान पर बंद हुआ। Benchmark equity indices witnessed a heavy sell-off today after investors booked profits in realty, banking, IT and auto blue chips amid weak signals from the global markets. The Sensex settled below 36,000 mark. Sensex declined 690 points, 1.9% to close at 35,742. The Nifty also fell 198 points, 1.8% to end at 10,754. Experts said the equity market witnessed selling ahead of the weekend, mainly due to fears of lower global economic growth in the coming year. Analysts said concerns over the rupee also loomed over IT and tech stocks. BSE mid-cap fell 1.79% and the small cap slipped 1%. The market breadth indicating the overall health of the market was weak. On the BSE, 905 shares rose and 1,686 shares fell. A total of 152 shares were unchanged. Among the sectoral indices on the BSE, IT down 2.6%, auto down 2.1%, telecom down 2.1%, underperformed the Sensex, while metal down 0.5%, power down 0.6%, and utilities were down with 0.9%. Puneet, the story clearly says that there was a heavy sell-off and profit booking, but it also talks about consolidation ahead of the new year because of pressures from the global markets. What are the global markets doing right now, which is creating this kind of trading behavior? Arjun, in fact, the movement in Indian markets today was purely a reaction to what happened in global markets, particularly the US market yesterday, where we saw a very sharp continued fall in stocks in the US. In fact, day before yesterday also they had fallen very sharply, about 2%, and then again yesterday they fell another 2% approximately. So clearly it is the US markets right now which are really on a downtrend, largely because of concerns that in the US the central bank, the US Fed, is a bit more aggressive on interest rate hikes than they should really be. And therefore, I think the markets are reacting to this. It is notable that the fall in US stocks is quite historic because
as of yesterday, when I looked at the figures, almost 40% of all listed stocks in US were at the 52-week low levels. Now, this has happened only 5 or 6 times in the last 100 years in the US. So my guess is that in US also we have seen this stock market sell-off being overdone. And it might correct going forward, but right now we are purely reacting to what is happening in global market. पुनीत, जैसे आपने कहा कि कल आपने ऑब्जर्व किया कि जो यूएस मार्केट है उसमें अगर हम कंपैरेटिवली देखें, डाउ को देखें और सेंसेक्स को देखें तो पिछले 7 सत्रों में लगातार भारतीय बाजार में बढ़त दर्ज हुई थी और 4.3% के करीब कुल सेंसेक्स में तेजी दर्ज हुई थी और उसी पीरियड में डाउ 3% से अधिक गिरा था। तो आपको लगता है कि एक डी कपलिंग की तरफ भारतीय बाजार बढ़ रहा है, यहाँ की इनहेरेंट स्ट्रेंथ, या आज का जो हमने देखा है प्रदर्शन जिसमें वहां भी 2% गिरावट, यहाँ भी 1.9% गिरावट, शायद वापस फिर वो डी कपलिंग रिवर्स हो रही है? देखिए, कई बार इस बात का विषय आया है कि क्या भारतीय बाजार या इमर्जिंग मार्केट्स डीकपल यानी यूएस मार्केट से एक अलग धुरी पे चल सकती हैं, अलग रास्ते पे चल सकती हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसा बहुत लंबे अरसे तक नहीं हो पाता। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि कभी डीकपलिंग या डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन लोकल फैक्टर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो जो भी विश्व की बाजारों की डायरेक्शन है, ज्यादातर मार्केट्स वही डायरेक्शन फॉलो करती हैं। उसका खास कारण यह है कि जो निवेश होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, देखिए वो ज्यादातर तो यूएस और यूरोप से ही आते हैं, उनके पास वहीं पे ज्यादा इन्वेस्टेबल सरप्लस है। थोड़ा जापान से हम देखते हैं इन्फ्लोज, थोड़े यूएस से देखते हैं और यूरोप से बल्कि कम आते हैं वहां से। तो यदि यूएस के बाजार गिरते हैं और वहां के निवेशक, वहां के इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचते हैं, तो वो ना सिर्फ यूएस में बेचेंगे, वो सभी बाजारों में बेचते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डीकपलिंग कोई बहुत लंबे अरसे तक चल सकता है। शॉर्ट टर्म में ऐसा देखा जाए। वैल्यूएशंस कैसे प्ले करी हैं इस पिछले दिनों में? दिसंबर के जो कारोबार हमने देखा है उसमें आपको लगता है कि अमेरिका में जो एक बहुत बड़ा उछाल आया था उसकी वजह से वहां पे वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड हो गया था, इसलिए हमने वहां पे गिरावट देखी, और क्योंकि हमारे बाजार में नवंबर एंड तक कंपैरेटिवली उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, इसलिए हमारा बाजार ज्यादा अट्रैक्टिव था। बिल्कुल यही कारण रहा है कि भारतीय बाजारों में और वैल्यूएशन में भी विद इन द सेम मार्केट, यदि हम भारतीय बाजारों की तरफ ही देखें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे वहां पर बहुत गिरावट नहीं थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट थी, क्योंकि वहां पर जो पी मल्टीपल हम कह सकते हैं या वैल्यूएशन कह सकते हैं बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थे। तो ऐसा देखा गया है कि भाई जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां पर ज्यादा गिरावट आती है। यूएस में भी अगर हम देखें तो जो ब्रॉडर मार्केट, जैसे मैंने मेंशन किया कि 40% ऑफ स्टॉक्स वर कोटिंग एट 52 वीक लोज, हालांकि जो इंडेक्स है उनका वो अभी भी पीक से सिर्फ करीब 15% ही नीचे है। तो डेफिनेटली ब्रॉडर मार्केट्स में पेन ज्यादा है। इफ यू लुक एट द निफ्टी इंडेक्स व्हिच इज जस्ट बिलो 10,800 राइट नाउ बिकॉज द मार्केट फेल बाय 200 पॉइंट्स व्हेन यू लुक एट द निफ्टी ओनली. How do you see the market next week? Because Friday being the last day of the trading week, and we are looking at the put open interest where you bet that the market will fall. And there seems to be quite a lot of interest that the market may fall till 10,500, 10,700 or may stay at par at 10,800. What is your prediction based on this data? So next week is also a critical week for many markets worldwide because in India we have expiry of the F&O series for December coming to an end. Similarly in US, because it's the end of the quarter, so you have triple witching, which is there's options and indices and stock futures and options, they also expire. So it's a very volatile week, I would say. However, traditionally last weeks of the year have been very good for the markets. In fact, I must point out that the performance of Dow Jones Industrial Average, the US index, in December this year has been the worst since 1931. This is like almost like after the Great Depression, this is the worst performance by the US markets in the month of December. So December usually is associated with a Santa Claus rally and But you've also mentioned about the Fed raising interest rates. So you see a lot of investment being diverted towards the bond market and away from the equity market. So exactly, this is what happened. We saw the bond markets, the 10-year yield on the government, US government bond, it has now fallen to about 2.75. Even 3% was considered to be pretty good because it had risen to about 3.2 at the peak. Now it is down to 2.75. So clearly bonds are in favor right now in US vis-a-vis equities.
I mean, if you ask me about next week, my own sense is that we will probably see some kind of recovery. This is my personal sense of the matter based on my experience. So the call option is what you will go for. Yeah. So my own sense is that we're going to see a rebound from the current levels in the US, and I think that should be followed in most of the markets. चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। पुनीत, आप कह रहे हैं कि अगले वीक आपको रिवाइवल की उम्मीद है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स फियर्स जता रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ जो है उसमें स्लो डाउन आएगा। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले ने 50% या ज्यादा चांस दिया है कि हो सकता है कि यूएस में रिसेशन भी आए। आपको क्या उम्मीद है आने वाले वर्ष से, अगर हम 2019 की बात करें तो? सुन, देखिए, अब खैर प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि एज एन एक्सपर्ट व्हेन वी लुक बैक तो 2018 को भी हमें ऐसा उम्मीद नहीं थी, जो हमने बहुत वॉलेटाइल और बहुत ही एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल देखा। तो ये हमेशा काफी कठिन काम है टू लुक फॉरवर्ड टू। बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि 2019 का वर्ष जो है वो कंसोलिडेशन का साल हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स 2018 में बहुत उठापटक हुई है, अनसर्टेनिटी रही है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स विल गो फॉर कंसोलिडेशन। भारतीय बाजार की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, भारतीय बाजारों में, और मुझे लगता है इंटरनेशनली भी। आपने बात करी रिसेशन की, तो ऐसे ही अंदाजा है कि यूएस में जो ग्रोथ रेट है, विच वाज अबाउट 3.2%, 3.5% इन द पास्ट क्वार्टर्स, दैट विल प्रोबेबली कम डाउन टू अबाउट 2%। मैं रिसेशन तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अभी हालात हैं कि वहां पर रिसेशन की हम फोरकास्ट करें, पर मुझे लगता है कि वहां पर जो ग्रोथ है वो वापस एक नॉर्मेटिव रेट है उनका 1.5 to 2% वहां पर आ जाएगी। और उसी दौरान शायद यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद कर देगा यूएस में। तो 2019 का वर्ष मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का साल होगा स्टॉक मार्केट्स के लिए भी। निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही वर्ष में की जाती हैं जब कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा कोई खबर नहीं होती और मार्केट्स शांति से कंसोलिडेट करती हैं। तभी समय होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि वो जो अच्छे कंपनीज हैं उसमें वो निवेश करें और फिर वो वेट अपने जो निवेश है उसका रिजल्ट आने के लिए वेट करें। तो कोई सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि पर्टिकुलरली जिन पे कॉन्सेंट्रेट शायद करना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा कठिन, अगेन वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं इंडिया में, और पर्टिकुलरली आई फील इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ विल पिक अप इन नेक्स्ट 2 years नाउ, क्योंकि जीएसटी को इंप्लीमेंट हुए 2 साल हो गए हैं। ये धीरे धीरे हमने देखा है, ये विश्व का हमारा अनुभव रहा है कि जब भी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है उसका अच्छे फायदे, जो असली फायदे हैं, वो 2 वर्ष के बाद इकोनॉमीज को आते हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में पर्टिकुलरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं, जहां बहुत ही वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हो गई हैं, बहुत नीचे आ गई हैं वैल्यूएशंस, वहां पर और जहां कैपिटल इन्फ्यूजन भी कर रही है हो रहा है, ऐसा लगता है कि वहां पर ग्रोथ आने वाली है। दे आर डूइंग वेरी वेल। क्रेडिट ग्रोथ 15% के आंकड़े आए हैं, अब जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र हैं जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। What about the IT stocks because of the movement in the rupee today that was impacted? Just looking at some of the figures that I may cite before you, the rupee fell 193 paise for this week and 449 paise since the fall in the month of October, and that's impacting how fell means strengthened. We're talking about strengthening. Yeah. Yes, my correction when you exchange it to the US dollar. But yes, it did fall and the US dollar actually strengthened, just to remark the correction again. But how do you see the IT sector in this before the end of the year and in the new year? So Arjun, there is a belief that, so we have a strong IT sector which exports most of the services. So therefore, whenever there's a fall in the rupee's value vis-a-vis the foreign currency, the US dollar, so we saw the rupee go to about, depreciate to about 74, 75, we do see some kind of an accretion of immediate cash flows to IT companies.
However, in dollar terms, we have seen a steady growth of about 4% to 5% for all IT exports. So my own sense is that rupee depreciation does not give a very big boost to exports by Indian companies. What we need is competitive advantages. However, in the short term, whenever rupee depreciates, we see some kind of an advantage, short-term advantage to IT companies. Therefore, I think rupee's movement is not a big long-term factor for IT to grow. In any case, IT companies have done very well. In the past 1 year, the valuations have gone up a lot. Again, I think it is time for IT companies to consolidate their operations. And therefore, if you ask me, I don't find it very hot as an investment, but it's a very good, solid, stable investment for steady cash flows. पुनीत, हाल में आपने देखा है कि ऑटो क्षेत्र में खासी एक दबाव था, नीचे की तरफ स्लो डाउन था, एंड अभी जो सिचुएशन चेंज हुई है ऑयल प्राइसेस को लेकर 53 के करीब आ गई हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस, जो अभी कुछ हफ्ते पहले तक 86 पर थी. ये जो चेंज आया है, इससे हमने ओवरऑल तो अपने शेयर बाजार में एक बॉयंसी देखी है. कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनके फॉर्चून्स चेंज हो जाते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के नीचे आने से? सो क्रूड ऑयल प्राइसेस, सोनू, देखिए, करीब करीब सभी जो इकोनॉमी के क्षेत्र हैं उनको सीधा या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. सीधे सीधे तो ऑयल प्राइसेस होने से, बढ़ने से या घटने से जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, कार्स की सेल्स की, ऑटोमोबाइल की आपने बात करी, उस पर सीधा असर पड़ता है. साथ ही पेट्रोकेमिकल्स है, वहां फर्क पड़ता है. एविएशन है सेक्टर, उसमें फर्क पड़ता है. तो अब पॉजिटिव असर होगा. हाँ, तो देखिए कुछ क्षेत्रों में पॉजिटिव असर उसका हो सकता है. इंडिया के लिए तो देखिए लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस इज ऑलवेज गुड न्यूज, क्योंकि हम 80 से 90% अपना क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं. उससे हमारी करेंसी को फर्क पड़ता है. तो आप मान के चलिए कि जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे, हमारे पूरी अर्थव्यवस्था को उसका फायदा होगा. गाड़ियों की आपने बात करी, तो गाड़ियों में बताना चाहूंगा कि मुझे जो मारुति सुजुकी ने इनफैक्ट अपना लेटेस्ट एस्टिमेट दिया है ग्रोथ का, और उसमें उन्होंने ग्रोथ एस्टिमेट को कट किया है. 8%. दे हैव नाउ कट इट टू 8%. कि 8%, जो पहले 12 से 15% ग्रोथ हम देख रहे थे कार की सेल्स में, वहां पर उन्होंने कहा है कि शायद आने वाले दिनों में वो 8% की होगी. तो मुझे लगता है कि वहां भी एक मॉडरेशन का जो टाइम है वो अब चल रहा है, और शायद कुछ समय तक हम देखेंगे कि वो इसी रेंज में ग्रो करेगा. शायद उसके बाद फिर इकोनॉमिक पिकअप के साथ सेल्स बढ़े तो बेहतर होगा, पर अभी मुझे लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा. समग्र चर्चा को जारी रखेंगे. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज अन्य वैश्विक बाजारों के अनुरूप गिरावट का रुख रहा. अमेरिका में वित्तीय कारणों से सरकार का कार्य बंद होने की आशंका से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के चलते आगामी आर्थिक स्थिति को लेकर निवेशकों में चिंताएं उत्पन्न हो गईं. जापान का निकेई सूचकांक 1.1% की गिरावट पर बंद हुआ. चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.5% का नुकसान दर्ज हुआ, और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई. हालांकि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी सूचकांक में 0.1% की मामूली बढ़त रही, और हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.5% की तेजी पर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो ताजा समाचार मिलने तक यहां के प्रमुख बाजारों में मंदी का रुख था. लंदन का फुटसी 0.4% की गिरावट पर था. जर्मनी के डैक्स में 0.7% की मंदी, और फ्रांस के कैप में 0.4% का नुकसान चल रहा था. पुनीत, अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें, अगर हम कल तक जो फिगर्स आई थी ईयर टू डेट कैलेंडर ईयर 2018 में, अब तक 4% की बढ़त जहां भारतीय बाजार में थी, वहीं 20% की गिरावट चीन के बाजार में, साउथ कोरिया में 10% गिरावट, 16% गिरावट, और ताइवान में 9% गिरावट. तो कैसे देखते हैं आप भारत की स्थिति अभी एज अ कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन? तो सुनो, देखिए, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं आपने जो मेंशन किया कि इंडिया इज अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द इमर्जिंग मार्केट स्पेस, और भारतीय बाजारों में इनफैक्ट उसका एक दूसरा फ्लिप साइड ये है कि जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो अब इंडियन स्टॉक्स में मैक्सिमम है इमर्जिंग मार्केट्स में. तो एक प्रकार से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी हिम्मत की बात होगी कि वो भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट करें. एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए भारतीय बाजार बहुत अट्रैक्टिव है अभी इन्वेस्टर्स के लिए. एक जरूर उसमें फर्क है कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां वैल्यूएशंस काफी नीचे आ गई हैं, तो मे बी वी आर वेरी अट्रैक्टिव इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस rather than large caps. For the benefit of our listeners, what is going on in the US? What does it mean that there's a government shutdown which is actually threatening the Asian markets?
So, Arjun, you're right. I mean, everybody feels that this term is so, it's so kind of threatening and intimidating. When you say government shutdown, it is as if everything will come to a standstill. But that is not true. In US, the government shutdown only refers to certain departments of the government which are not critical to day-to-day operations of the government. Rest of the government, of course, whether the law enforcement or defense or postal services, electricity services, utilities, they all work normally. It is not that if the government in US will come to a standstill. However, expenditure to, for example, some healthcare workers, those services get not temporarily laid off. They don't get paid for that week. So clearly there are some services which get affected. At the same time, it's a big deal because it shows lack of political consensus in US, and going forward, I think it will affect economic legislations in US. इससे पहले कि हम रुक करें अमरीकी बाजारों का, लेंगे एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. Invest in government bonds. A safe, long-term investment. Invest through the NSC GoBid mobile app. Minimum investment of just ₹10,000. Download the app today. Welcome back to Market Mantra, and to continue our stories in the U.S. market, U.S. stocks slid yesterday amid threat of a partial government shutdown which fueled investor anxieties. The Dow Jones Industrial Average tumbled 2%, while the S&P and the Nasdaq Composite Index plunged both 1.6% each. We earlier spoke about the impact of global markets on Sensex and Nifty, and you spoke about the government shutdown just now, and also the deviation away from the equity market into the bond market. How do you see the new year for the U.S. stock market, especially what's going on in the U.S. political scenario? So, of course, there are a lot of headwinds for the U.S. markets now because with economic growth slowing down to some extent, with trade war, U.S.-China trade war now kind of moving into a next phase of conflict, I would say, and the hopes receding that there will be a broad-based consensus on agreement on that. So there are clearly strong headwinds for U.S. going forward. Only, I think the positive is the fact that the U.S. Federal Reserve is not going to be aggressive on raise hikes now. Possibly there could be only 1 or 2 rate hikes going forward in next 1 year. So they will get some respite on that account, on the monetary policy account. So a lot of positives and negatives, I would say, for the U.S. markets. But I think the worst is behind us vis-a-vis markets, because I just mentioned the U.S. markets, the broader markets have really come down very heavily in U.S. While the headline indices are down about 15 to 20% from peak, the broader markets, I think 40% of the stocks are really quoting at 52-week lows. So clearly valuations in U.S. also have come down. There could be a consolidation, and going forward, like I said earlier, in the short term we could see a bounce back. But again, I think they need to, because we've seen a 10-year rally in But US. the quantitative easing is no more. There is a restriction on the supply of easy credit also. I don't know. They haven't done that yet, in the sense that, except the fact that the cost of money has gone up. So let's say they were borrowing earlier at 1% or 1.5%. Now the US banks have to borrow at 3% plus from the market. So clearly the cost of capital has gone up, which restricts automatically Not supply. Because they haven't kind of restricted the money supply in the system. पुनीत, यूएस फेड का जो कल परसों फैसला आया है, उन्होंने रेट्स चौथी बार बढ़ाए हैं 2018 में, और आगे भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो बंद करेंगे रेट हाइक्स. हो सकता है कि उनका जो पहले का अनुमान था उससे कम हो. ऐसे में आरबीआई के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं? उनके जो डिसीजन है रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वो कैसे प्रभावित होगा? देखिए, अब जो नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी है वो फरवरी के पहले सप्ताह में, 5 फरवरी की जो शेड्यूल्ड पॉलिसी है, जो हमारे सामने इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, बिकॉज आरबीआई राइटली और रॉन्गली इज फोकस्ड ओनली ऑन इन्फ्लेशन. उसका मैंडेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है. इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो हमारा टारगेट है काफी नीचे चल रहा है, करीब 2.5% की जो लेटेस्ट आंकड़ा है इन्फ्लेशन का. तो मुझे ये लगता है कि आरबीआई के पास अब हेडरूम है मॉनेटरी ईजिंग का. इंटरेस्ट रेट कट भी कर सकते हैं वो, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में काफी लिक्विडिटी आरबीआई इंडक्ट कर दिया है, तो वहां पर जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज से 3 महीने पहले जो 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड था इंडिया में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड्स थे, उसका जो ब्याज थी वो 8.25% पर यील्ड पर पहुंच गए थे. वो यील्ड आज घटकर 7.27 रह गई, यानी 1% ओपन मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है.
तो ऐसे जब भी ऐसे हालात होते हैं तो रिजर्व बैंक के पास काफी हेडरूम होता है इंटरेस्ट रेट कट करने का। मुझे लगता है कि आरबीआई विल सीरियसली कंसिडर कटिंग रेट्स इन द फरवरी पॉलिसी। इस पॉजिटिव नोट पर चलते हैं करेंसी की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में पिछले 3 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला आज टूट गया। रुपया $1 की तुलना में 48 पैसे कमजोर होकर 70 रुपए 18 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। पिछले 3 सत्रों के दौरान रुपए में डॉलर के मुकाबले कुल ₹1.85 की तेजी दर्ज हुई थी। हालांकि आज गिरावट आई है रुपए में, लेकिन पिछले 3 दिनों से हमने खासी तेजी देखी। इनफैक्ट कल 70 रुपीज से नीचे चला गया था, 69 प्लस लेवल पर था रुपए का स्तर। क्या लगता है आपको अभी करेंसी मार्केट की आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं और ये कैसे प्रभावित करेगा हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को? तो सुनो, जो एक्सचेंज रेट होता है ये 2-3 मुख्य कारणों पे निर्भर करता है। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, यानी हमारा डॉलर के परचेजेस वर्सेस आ डॉलर इनकम, वो उसमें क्या फर्क है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है करेंसी एक्सचेंज रेट में। सेकेंडली, इन्फ्लेशन का काफी असर पड़ता है। साथ में फिस्कल डेफिसिट जो मैक्रो सिचुएशन है हमारी, उसका असर पड़ता है। यदि मैं इन तीनों कारणों को देखूं आज से 1 वर्ष पहले, तो तीनों में काफी प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने करेंसी में गिरावट देखी। आने वाले समय में मुझे लगता है तीनों ही कंसर्न्स हमारे सामने नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने की उम्मीद है। मैक्रो स्टेबिलिटी यानी फिस्कल डेफिसिट, हमारी सिचुएशन काफी स्टेबल है। और साथ ही मुझे लगता है कि जो दूसरे मुख्य कारण है वहां पर स्टेबिलिटी है। तो रुपया मुझे लगता है 70 रुपए के आसपास जो करंट लेवल है यहीं पे रहेगा। Moving on to the oil market, oil prices today fell to their lowest since the third quarter of 2017, heading for losses of more than 10% in a week as global oversupply kept buyers away from the market ahead of the long festive break. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $53.15 per barrel. WTI prices were at around $45.40 per barrel when reports last came in. Usually during winters, the heating oil supply in the U.S. goes up and prices also go up correlatively, but we haven't seen that. Now it seems there's an oversupply. Absolutely. I think the oil markets are really kind of topsy-turvy because of a lot of intervention by OPEC and other players. Cartelization is really bad for the oil prices. I think the prices are going to stay soft. चलते हैं सराफा बाजार की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज करते हुए 230 रुपए के उछाल से 32,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग बढ़ जाने से सोने में ये तेजी आई। चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में अधिक रहने से चांदी भी 250 रुपए के उछाल से 38,000 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। वैश्विक स्तर पर कल न्यूयॉर्क के बाजार में सोना मजबूती के साथ $1,259.12 प्रति आउंस पर था। चांदी में भी तेजी थी और ये $14.72 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark indices plunge around 2%. Sensex closed below 36,000 mark. Rupee logs weakness after gaining ₹1.85 in the last 3 days. And Brent crude prices fall to trade around $53 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Market Mantra.